BRS کے سربراہ KCR سے پوچھ تاچھ ختم ہوئی۔ کالیشورم کمیشن کے چیئرمین جسٹس PC گھوش نے ان سے 50 منٹ تک پوچھ تاچھ کی۔ کالیشورم آبپاشی پروجیکٹ میں مبینہ بے قاعدگیوں کے سلسلے میں تشکیل دیے گئے جسٹس PC گھوش کمیشن کے روبرو سابق چیف منسٹر KCR چہارشنبے کو پیش ہوئے۔ BR کے بھون میں جسٹس PC گھوش نے KCR سے تفصیلی سوالات کیے۔ کالیشورم پروجیکٹ کی دوبارہ ڈیزائننگ، بیریجز کی تعمیر، معاہدے، کالیشورم کارپوریشن کے قیام اور پانی کی ذخیرہ اندوزی سے متعلق کئی امور پر پوچھ گچھ کی گئی۔ KCR کے ہمراہ BRS کے دیگر 9 قائدین کو بھی BR کے بھون میں داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔ چندر شیکھر راؤ نے کمیشن کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے اور 200 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ بھی پیش کی، جس میں کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر سے متعلق تمام تر تفصیلات شامل ہیں۔ تقریباً 50 منٹ تک KCR کمیشن کے پاس موجود تھے۔ جسٹس PC گھوش نے اب تک 114 افراد سے پوچھ گچھ کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کمیشن نے محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں اور تعمیری اداروں کے نمائندوں سے بھی پوچھ تاچھ کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ سابق وزراء ایٹیلا راجندر اور T ہریش راؤ بھی کمیشن کے روبرو پیش ہو گئے ہیں۔ BRS کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ PC کمیشن کے ذریعے پوچھے گئے سوالات کے تمام تر جوابات دینے کے بعد BR کے بھون سے باہر نکلے اور میڈیا کے نمائندوں سے بات کیے بغیر ہی روانہ ہو گئے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے محرم و عاشوراء کے موقع پر نکالے جانے والے بی بی کے علم کے جلوس کے انتظامات کے سلسلے میں منعقد کیے گئے اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس میں شرکت کی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر کی صدارت میں ڈاکٹر BR امبیڈکر سکریٹریٹ میں محرم و عاشوراء کے موقع پر نکالے جانے والے بی بی کے علم کے جلوس کے انتظامات سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مجلسی ارکان مقننہ مرزا ریاض الحسن آفندی، قاسم محی الدین، جعفر حسین معراج، میر ذوالفقار علی، محمد مبین، محمد ماجد حسین و دیگر نے اجلاس میں شرکت کی۔ اس دوران MLC مرزا ریاض الحسن آفندی نے کہا ہے کہ یوم عاشوراء کے تاریخی جلوس کے لیے ہاتھی کی فراہمی پر NOC جاری کرنے کی محکمہ جنگلات کو ہدایت دی جائے۔ انہوں نے گرانٹ ان ایڈ کی رقم میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا۔ کاروان کے MLA قاسم محی الدین نے ان کے حلقے کے عاشور خانوں کی مرمت کروانے پر زور دیا اور نامپلی کے MLA محمد ماجد حسین نے بھی ان کے حلقے میں واقع عاشور خانوں اور اس کے اطراف کے کاموں کو جلد از جلد مکمل کروانے کا مطالبہ کیا۔ بہادر پورہ کے MLA محمد مبین نے بی بی کا چشمہ عاشور خانہ اور تاڑبند عاشور خانے کے کاموں کے لیے نمائندگی کی۔ گلوکارہ منگلی کی سالگرہ تقریب کے دوران پولیس نے چھاپہ مار کر غیر ملکی شراب اور چرس برآمد کی۔ ذرائع نے بتایا کہ گلوکارہ منگلی نے منگل کی رات چیوڑلہ کے مضافات میں ارلا پلی کے قریب ایک ریزورٹ میں اپنے دوستوں کے لیے سالگرہ تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ پارٹی کے دوران پولیس نے چھاپہ مارا اور مبینہ طور پر غیر ملکی شراب اور چرس برآمد کی۔ منگلی اور ریزورٹ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریب میں 48 افراد نے شرکت کی تھی، جن میں منگلی کے دوست اور فلم انڈسٹری سے وابستہ کچھ افراد شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 9 افراد نشے میں دھت پائے گئے۔ NDPS اور صوتی آلودگی ایکٹ کے تحت بھی قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے شہر میں سیلاب کو روکنے کے لیے نالوں کی توسیع پر زور دیا ہے اور عہدیداروں کو توسیع کاموں کو جون کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ موسم برسات کا آغاز ہو گیا ہے اور شہر حیدرآباد میں سیلاب کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ حیدرآباد میں سیلاب زدہ علاقوں میں نالے کے توسیع کاموں کو تیزی سے انجام دیں۔ کمشنر نے ان کاموں کو جون کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ شہر میں سیلاب کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے کنٹونمنٹ کے CEO مدھوکر نائک اور آبپاشی و ٹریفک محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ پیٹنی نالے کے توسیع کاموں کا معائنہ کیا اور مختلف امور پر بات چیت کی۔ عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں دی۔
साबिक वजीर आला केसीआर कलेश्वरम कमीशन के रूबरू पेश होने बीआर के भवन पहुंचे। पुलिस के सख्त इक़दामात के बावजूद केसीआर की हिमायत में कायदीन, कारकुनान और मद्दाहों का हुजूम देखा गया। बीआरएस सरबराह व साबिक वजीर आला केसीआर चारशंबा 11 जून को कलेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना धांधलियों की तहकीकात करने वाले पीसी घोष कमीशन के रूबरू पेश हुए। जैसे ही केसीआर का काफिला बीआर के भवन के अहाते में दाखिल हुआ, वहां पर उनके मद्दाहों, बीआरएस कायदीन और कारकुनान की एक बड़ी तादाद इकट्ठी देखी गई, जिन्होंने केसीआर को देखते ही जय केसीआर और जय तेलंगाना जैसे नारे बुलंद किए। हालांकि पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बीआरएस रहनुमाओं और कारकुनों की एक बड़ी तादाद केसीआर की हिमायत के लिए बीआर के भवन पहुंच गई थी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पोडेली तंबाकू नीलामी मरकज का दौरा करते हुए काश्तकारों से बातचीत की। वाईएसआरसीपी के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने चारशंबे को पोडेली तंबाकू नीलामी मरकज का दौरा किया। इस दौरे का मकसद तंबाकू के किसानों को दरपेश चैलेंजेस को समझना था। किसानों के साथ बातचीत के दौरान वाईएस जगन ने मार्केट के हालात, खरीदारी में पाई जाने वाली रुकावटों और मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुस्तहकम इमदादी निज़ाम की अदम मौजूदगी के बारे में दरियाफ्त किया। दरियास्ता किसानों ने मुबैना तौर पर कीमतों में उतार चढ़ाव और बरवक्त मदाखलत के फुकदान की वजह से होने वाली माली परेशानियों को उजागर किया। साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने किसानों को यकीन दहानी करवाई है कि उनके खदशात का संजीदगी से नोट लिया जाएगा और वो ज़रूरी पैदावार के लिए मुनासिब कीमतों के तरीक़ेकार को यकीनी बनाने के इक़दाम करेंगे। साबिक वज़ीर आला केसीआर से बीआर के भवन में पूछताछ के दौरान पुलिस के मीडिया के नुमाइंदों के साथ नारवा सलूक करने और उन्हें कवरेज से रोकने का वाक़या पेश आया है। कलेश्वरम कमीशन बीआरएस के सरबराह केसीआर से बीआर के भवन में पूछताछ कर रहा था और केसीआर के मद्दाह पार्टी कारकुनान की एक बड़ी तादाद बीआर के भवन के बाहर इकट्ठा थी। इस दौरान पुलिस ने कवरेज पर जाने वाले मीडिया के नुमाइंदों के साथ नारवा सलूक किया। न सिर्फ वहां रुकावटें खड़ी की गई, बल्कि मीडिया के नुमाइंदों को रोक दिया गया। बताया जाता है कि इसके बाद कुछ फोटो जर्नलिस्ट तेलुगु तली फ्लाई ओवर पर चढ़े ताकि बीआर के भवन के सामने की सूरत हाल का कवरेज कर सके, तस्वीर कशी कर सके, लेकिन फ्लाई ओवर पर मौजूद पुलिस एहलकारों और कांस्टेबल्स ने उन सहाफियों को रोक दिया और उन्हें हिदायत जारी की गई कि वो तस्वीर कशी न करें। सहाफियों ने जब इस पाबंदी पर सवाल उठाए तो उनके साथ नारवा सलूक किया गया। फोटो जर्नलिस्ट ने पुलिस की इस कार्रवाई पर बरहमी जाहिर की है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने महकमा आबपाशी के EEN श्रीधर से मुंसलिक 12 मुकामात पर छापे मारे और आमदनी से जायद असासों का इंकिशाफ किया। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने 11 जून को महकमा आबपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर N श्रीधर से मुंसलिक 12 मुकामात पर छापे मारे और इस दौरान आमदनी से जायद असासे इकट्ठे करने का इंकिशाफ किया। आपको बता दें कि श्रीधर फिलहाल चौपाडंडी में SRSP कैंप में CAD डिवीजन 8 में तैनात है। कबल अजी उन्होंने कलेश्वरम प्रोजेक्ट पर भी काम किया था, जिसके खिलाफ मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की जांच की जा रही है। ACB के ओहदेदार उनके असासों और माली लेन देन के बारे में पूछ कर रहे हैं। तलाशी के दौरान अफसरान को पता चला कि श्रीधर के पास मलकपेट में एक 4 मंजिला इमारत, शेखपेट में एक गेटेड कम्युनिटी में 4500 मुरब्बा फीट का फ्लैट, टीलापुर में एक लग्जरी विला और वरंगल में एक 3 मंजिला इमारत है। बताया जाता है कि करीमनगर के मुतादिद होटलों में उनके कारोबारी लेन देन है। ACB ने यह भी इंकिशाफ किया है कि उन्होंने थाईलैंड में अपने बेटे की शादी पर करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ACB ने श्रीधर के खिलाफ आमदनी से जायद असासे रखने का मुकदमा दर्ज किया है। मुमकिना बेनामी मिल्कियत और आबपाशी के माहितों में बेज़ाब्तगियों से रवाबित के लिए माली दस्तावेजात, जायदाद के रिकॉर्ड और लेन देन की तफसीलात की जांच जारी है। हज के दौरान टोगो से ताल्लुक़ रखने वाली एक आजिम खातून ने कोहे अरफात के मुक़द्दस मुकाम पर बच्चे को जन्म दिया। दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन ने जहां सऊदी अरब में हज की सादत हासिल की, वहीं
टोगो की एक आजिम खातून ने एक और सादत हासिल की। हज के दौरान खातून ने मैदान अरफात में बच्चे को जन्म देकर एक मुनफरिद सादत और एजाज अपने नाम कर लिया है। मौके पर मौजूद तिब्बी टीमों की जानिब से फौरन देखभाल के बाद मां और उसके नौज़ायदा बच्चे की सेहत बेहतर बताई गई है। बच्चे की पैदाइश अरफात के रूहानी माहौल में हुई और इस साल हज के दौरान ये पहली तस्दीक शुदा पैदाइश थी। आपको बता दें कि मज़कूरा खातून उन 100 ममालिक के 2443 बैनुल अक़वामी आज़मीन में से एक थी जिनकी मेज़बानी वज़ारत इस्लामी उमूर, दावत व रहनुमाई के ज़ेर एहतमाम हज, उम्रा और ज़ियारत के लिए खादमीन के प्रोग्राम के मेहमानों ने की थी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कलेश्वरम तहकीकाती कमीशन के जरिए केसीआर से पूछताछ करने को दो कौमी जमातों की साजिश करार दिया है। बीआरएस के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर पूछताछ के लिए कलेश्वरम कमीशन के रूबरू पेश हुए। कमीशन के चेयरमैन जस्टिस पी चंद्र घोष और सेक्रेटरी मुरलीधर ने उनसे बीआर के भवन में पूछ की। दरियासना बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटीआर ने बीआर के भवन के बाहर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट में 100 अज्जा हैं। अगर कोई एक चीज में छोटी सी खामी पाई जाती है तो पूरे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचता है। कांग्रेस गलत मालूमात फैला रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने ही मेदी गड्ढा के खिलाफ साजिश की होगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि भारत राष्ट्रीय समिति को शोहरत मिले। केटीआर ने कहा कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट 4 साल में मुकम्मल हुआ था और 70 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों को आपाशी के लिए पानी नहीं मिल रहा है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने वुज़रा के कलमदानों का फैसला करने के लिए दिल्ली में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपाशी के शोबे के बारे में जितनी सूझबूझ केसीआर के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। उन्होंने इंतखाबात के दौरान किए गए वादों पर अमल दरामद न करने पर कांग्रेस पर तनकीद की और कहा कि ये सारी साजिशें कांग्रेस और बीजेपी मिलकर कर रहे हैं ताकि लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। उन्होंने तहकीकाती कमीशन के जरिए केसीआर से पूछताछ को केसीआर को बदनाम करने की दो कौमी जमातों की साजिश करार दिया। न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के दफ्तर के बाहर दर्जनों अफराद ने गैर कानूनी तारीकीन वतन की बेदखली के लिए छापे मारने के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों पर बढ़ते हुए कौमी तनाव के चलते दर्जनों लोग न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के दफ्तर के बाहर इकट्ठे हुए और उन्होंने वफाकी इमिग्रेशन मुहिम और कैलिफोर्निया में फौजी तैनाती के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के जरिए गैर मुल्की शहरियों के घरों पर चल रही छापेमारी के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हुए और ये अमेरिका के 12 रियासतों के 25 शहरों तक पहुंच गए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, डलास, ऑस्टिन, टेक्सास और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में पुरअमन मुजाहरे किए गए। हालात पर काबू पाने के लिए लॉस एंजल्स में 4000 नेशनल गार्ड्स को भेजा गया है। बीआरएस लीडर पी नरसिंह की क़यादत में मलकपेट में धरना मुनज़्ज़म किया गया। पी नरसिंह ने केसीआर से पूछ को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करार दिया। बीआर के भवन में केसीआर की समाअत के दौरान बीआरएस लीडर पी नरसिंह की क़यादत में मलकपेट में धरना दिया गया। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। बीआरएस रहनुमा ने मुतालबा किया है कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट रियासत की तरक्की का सबूत है और इसका सियासी फायदे के लिए गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो मुस्तक़बिल में भी जमहूरी तरीके से अपनी तहरीक जारी रखेंगे। एसआईबी के साबिक सरबराह प्रभाकर राव फोन टैपिंग मामले की तहकीकात के सिलसिले में दूसरी मर्तबा एसआईटी के रूबरू पेश हुए। अमेरिका से वापसी के बाद एसआईबी के साबिक सरबराह व डीएसपी प्रभाकर राव फोन टैपिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में पीर को एसआईटी के रूबरू पेश हुए थे। चारशंबे को वो दूसरी मर्तबा एसआईटी के सामने पेश हुए हैं। वो जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचे जहां पर एसआईटी के अहलकारों ने उनसे
पूछताछ की। आपको बता दें कि प्रभाकर राव पर गैर कानूनी निगरानी के स्कैंडल में कलीदी किरदार अदा करने का इल्जाम है। SIT की जानिब से तहकीकात में शिद्दत लाई जा रही है। BRS के सरबराह KCR के एरावली फार्म हाउस पर पार्टी कायदीन और कारकुनान ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया। BRS सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के चारशंबा 11 जून को कलेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना धानियों की तहकीकात करने वाले PC घोष कमीशन के रूबरू पेश होने से कबल एरावली में वाक़ उनके फार्म हाउस पर पार्टी कायदीन और कारकुनान इकट्ठा हुए और उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी के सियासी इंतकाम के खिलाफ एहतजाज किया। KCR के हामियों ने कहा कि KCR ने कलेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना को सरसब्ज व शादाब बनाने का काम किया और उसी प्रोजेक्ट के जरिए KCR को निशाना बनाना एक निचली सतह की सियासत है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,